Strike and lockout under Industrial Dispute Act. First, the definition of strike is it is a weapon used by a workman as a last resort in a process of collective bargaining. So it is a last resort whenever a dispute is arose between the parties, like workman versus employee. Whenever the dispute is arose, in that situation, as we seen earlier, through conciliation proceeding, conciliation officer, there are chances of mutual settlement between the parties. The proposal from the both parties are on a table, and then a settlement will find out after the negotiation, the collective bargaining. Some points from the employer side, some points from the employee side. Okay, but if this collective bargaining is failed, or the worker or labor or trade union feels that this collective bargaining is somehow just a delaying tactics, not more than that, and again and again and again they are requesting to the employer, to the concerned authority, that resolve our dispute. And if no one is ready to hear or no one is ready to satisfy them, in that situation, they call strike. Okay. So strike ka definition as per section 2, subsection Q is strike means it's a cessation of a work by a body of a person employed in an industry in a combination or concerted refusal or refusal under a common understanding of any persons who are or have been so employed to continue to work or accept employment. तो in totality अगर हम बात करें तो strike अगर ट्रेड यूनियन अवेलेबल है तब तो ट्रेड यूनियन डिक्लेयर करेगी. ओके, अगर ट्रेड यूनियन अवेलेबल नहीं है तो एक सिंगल आदमी भी अपनी स्ट्राइक डिक्लेयर कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्कर भी डिक्लेयर कर सकते हैं. या देखिए कई बार एक इंडस्ट्री में आधों की स्ट्राइक होती है या कुछ की स्ट्राइक होती है, कुछ की नहीं होती, तो ये आप कंटिन्यूएशन पे नहीं ला सकते. ठीक है, या ये आप कंपलसरी नहीं कर सकते कि इतने ही नंबर होने चाहिए स्ट्राइक के लिए. नो, इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल. तो स्ट्राइक के लिए आपका सिंगल पर्सन हो, सेसेशन ऑफ वर्क, या मोर देन इंडिविजुअल हो विद द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए. ये सारी चीजों को अगर आप कलेक्टिवली ले लेते हैं, जब वो रेडी नहीं होते, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, then too they are not ready to accept the same or to continue with the work, then it is known as strike. अब एनालिसिस में आते हैं, जो what are the essential elements of a strike. When the strike is declared, and what are the constituent elements before declaring a strike. So it is an action of a body of a persons employed in an industry. Body of a persons means same that आपकी लेबर यूनियन बॉडी ऑफ अ पर्संस, अगर वो एक साथ जब डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेबर यूनियन ये आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन है. पर्सन के डेफिनेशन में ही आता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन है. लेबर के अंदर लेबर यूनियन नाम का कोई एक इंसान नहीं होता. दे आर द बॉडी ऑफ अ पर्सन, बॉडी ऑफ अ लेबर्स. ओके, और जब वो कंसल्टेड रिफ्यूज करते दैट वी आर नॉट परफॉर्म अवर जॉब, या उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम नहीं करेंगे,
इसको कहते हैं हम लोग स्ट्राइक। मीन्स अगर ज्यादा नंबर्स में लोग या आपके वर्कर्स मना कर दे काम करने के लिए, ऐसी सूरत में आपकी स्ट्राइक डिक्लेयर हो जाती है। आई बात समझ में? अब उसके बाद while concerted refusal to do work required to be done amount to strike, the Supreme Court held that in Northbrook Jute Company Limited versus their workmen 1960 volume 1 legal law journal page number 580 Supreme Court, that when the worker or workmen are not bound to do a particular work, refusal to do this work does not amount to strike, despite the fact that their refusal is concerted or under common understanding. देखिए, वर्कमैन को जब आप जॉब देते हैं, एक उनका एक जॉब प्रोफाइल होता है, उन्हें वही काम करना है। अगर वो काम करने से मना करे तभी स्ट्राइक है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवा रहे हैं या एक्स्ट्रा कोई वर्क करवा रहे हैं और वो कॉमन एंड अंडरस्टैंडिंग से वो लोग काम करने से मना कर दें, तो वो स्ट्राइक नहीं कहलाएगा। ओके, उसको आप स्ट्राइक नहीं बोले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, इनको आपने बोला कि आपको अपने मजदूरों का इलाज करना, आपके अपने पेशेंट का इलाज करना, डॉक्टर से काम कर रहे हैं, दे आर बाउंड टू डू। अब अगर डॉक्टर वो चीज मना कर दे, ठीक है, तो आपका अपने आप ये स्ट्राइक डिक्लेयर हो जाएगी। हाउएवर, आपने एक चीज उनसे और रिक्वेस्ट की कि आपको घर घर जाकर देखना है पेशेंट को, तो ये उनके जॉब प्रोफाइल में नहीं है। और अगर इसको करने से वो मना कर दे, देन ये आपका आता है रिफ्यूजल ऑफ वर्क। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्ट्राइक। तो याद रखिएगा, स्ट्राइक सिर्फ उस चीज के लिए मानी जाती है जो उनका रेगुलर वर्क है और द वर्क असाइंड अंडर देयर प्रोफाइल। अदरवाइज अ रिफ्यूजल ऑफ वर्क इज नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक। ठीक है, a pursuit of a definition of a strike reveals that it involves a cessation of a work by a person employed in an industry, acting in a combination or concerted, a refusal under a common understanding of any number of a person to continue to work or to accept employment. Thus, the concept of a combined or join to work to accept the employment is the essential ingredients. Means ये याद रखिए, ग्रुप ऑफ पीपल हो, वही जो आपके वर्कमैन है, उनका ग्रुप हो, उनके बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम कि नहीं, we are not satisfied with the our that employer and all, तो we are declaring a strike. बट स्ट्राइक डिक्लेयर करने के पहले नेगोशिएशन होना जरूरी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होना जरूरी है. द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अर्डम पार्टम इज नेसेसरी बिफोर डिक्लेयरिंग एन स्ट्राइक, अदरवाइज योर स्ट्राइक विल बी डिक्लेयर्ड null and void, and you or the members who are involved in this illegal strike are liable to punishment as well as compensation for employer. So very careful before declaration of a strike. Essential ingredients must be completed. Before completion of essential ingredients, you should not declare a strike. Okay? चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्राइक. कितने सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास.
स्ट्राइक के there are several well known types of action by a workman which amount to strike. जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा, ओके, डेफिनेशन के समय हमने देखा था क्योंकि यहाँ पे वाइडर डेफिनेशन हमको मिला हुआ है, ठीक है। तो जब इंडस्ट्री का डेफिनेशन वाइडर है, वर्कमैन का डेफिनेशन वाइडर है, तो जाहिर है जब स्ट्राइक होगा, सेसेशन ऑफ वर्क होगा, उसका भी डेफिनेशन वाइडर होना चाहिए। वही यहाँ पे इन्होंने दिया दैट वर्कमैन बहुत सारे काम एक साथ करता है, ठीक है, या एक इंडस्ट्री में हर वर्कमैन के अलग अलग पार्ट। हमने वर्कमैन का डेफिनेशन देखा है, द पर्सन हु आर डूइंग अ स्किल, अनस्किल, मैनुअल, दैट क्लरिकल, मैकेनिकल, ये सारे काम करने वाले बंदे को हम लेबर कहते हैं, बराबर। और स्ट्राइक भी डिक्लेयर कौन करता है? लेबर करता है। तो स्ट्राइक का डेफिनेशन क्या है? स्ट्राइक का डेफिनेशन ये है आपका दैट कि cessation of work by a labor, that is known as strike. Whenever you cease to perform by the common understanding between that labors, it is known as strike. अब स्ट्राइक के आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। स्ट्राइक का पहला एग्जांपल, गो स्लो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप काम तो करते हैं पर आपको काम नहीं भी करना। दीज आर द कलरेबल प्रैक्टिसेस बाय द यूनियन। मीन्स आप अपना जो एक वो आपको फंक्शन दिया हुआ है कि इतने टाइम पे आपका वो कवर कर पाएंगे, ठीक है। आपके प्रोडक्शन यूनिट का एक आपका एक एवरेज होता है कि इतने टाइम पे आपको ये कवर करना है, बट अब आप अपनी नेचुरल लिमिट से नीचे जा रहे हैं, जानबूझ के आपने स्लो कर दिया। इससे आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपने काम भी नहीं किया। अक्सर ये हमारी बहुएं कर देती हैं, इतने सारे लोग आए हैं, काम नहीं करना है, अब लेकिन सासू माँ ने बोला है तो काम तो करना पड़ेगा, तो वो स्लो कर देती हैं काम। या आप छोटेपन में आप भी करते होंगे, जब ट्यूशन वाली टीचर पढ़ाती थी तो जानबूझ के स्लो लिखो ताकि कम लिखना पड़े, राइट। वो एबीसीडी हम लोगों को लिखाया जाता था तो हम लोग जानबूझ के स्लो लिखते थे कि कम लिखना पड़े। तो ये आपका स्ट्राइक नहीं है, बट आपने काम स्लो कर दिया। ऐसे ही प्रोडक्शन यूनिट या वर्कमैन अपना काम स्लो कर देते हैं, मतलब जो उनकी फुल कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी से नहीं चलेंगे। अभी तो फिलहाल ये बंद हो गया है, वरना अभी यही आप 6-7 साल पहले चले जाएं तो 12 बजे के बाद हम लोगों को अगर हम टैक्सी या ऑटो ले रहे हैं तो वो हाफ रिटर्न लगता था। जैसे ही 12 बज जाते थे रात के, मीन्स 100 रुपए का आपका भाड़ा हुआ तो वो आपसे 150 रुपए लेते, राइट। ये 5-6 साल पहले की बात है। तो जैसे ही 11:30 के बाद आप ऑटो लेते हैं ना रात में, तो उनका अपने आप वो चाल स्लो हो जाती थी। मीन्स ऑटो भी चला रहे हैं लेकिन उनको वो टाइम कवर करना, तो इसको बोलते हैं गो स्लो। उसके बाद आता है पेन डाउन, काम नहीं करना। सरकारी ऑफिस में अक्सर आपको दिखता होगा, आप अभी कोर्ट आएंगे तो कोर्ट में भी आपको ये चीजें बहुत पेशेंसली से फेस करनी पड़ेंगी, ओके। पेन डाउन मीन्स काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं दूसरे कामों। मीन्स द पर्सन इज सिटिंग ऑन हिज टेबल, पेन घिस जरूर रहा है लेकिन कर नहीं रहा है काम। कलरेबल वे में उसको वो डिनाई कर रहा है, तो ये भी आपका स्ट्राइक में आता है। सेट इन, आप पंचिंग करके अंदर पहुंच गए, अपनी प्रेजेंट लगा दी, लेकिन आप अपनी जगह पे नहीं है, वहीं पे बैठे हुए हैं, काम करने का मन नहीं है आपका, तो ये भी एक कलरेबल तरीका है। टूल डाउन, जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं, रिपेयरिंग यूनिट में आते हैं, वो अपने टूल्स को डाउन कर देते हैं, तो वो कहलाता है टूल्स डाउन। मींस नहीं करना है काम, रिपेयरिंग वर्क नहीं करेंगे,
तो अपने आप वो मशीनरी खराब होगी, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप रेहान इंडस्ट्री में चले जाए तो हर 2 घंटे में वो मशीनें मेंटेनेंस मांगती हैं। अगर आप फ्लोर मिल में चले जाएं तो हर आधे घंटे में वो मशीन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग मांगती है, राइट। तो यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे हैं, इट अमाउंट टू स्ट्राइक और सिट डाउन, करना ही नहीं, जो आपका अक्सर मेन देखा जाता है। तो ये सारी चीजों को स्ट्राइक में क्यों लिया गया, रीजन इसका ये था कि स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं हो रही। ओके, तो ये तरीके आप अपना लेते थे, तो कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया नो, ये भी आपका स्ट्राइक है। अब वो इलीगल है या लीगल है वो बात की बात है, बट इट अमाउंट टू स्ट्राइक। ओके, तो आपके ये 5 तरीके के आपके स्ट्राइक आते थे, जिनका आप कलरेबल वे में मतलब काम कर भी रहे हैं तो भी आप ये अमाउंट टू स्ट्राइक होता था। कौन कौन से थे, go slow whenever you down your work, you are available, बट आपने अपनी वर्किंग कंडीशन को स्लो कर दिया, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पेन डाउन, इफ यू आर इन दैट डिपार्टमेंट जो सारा का सारा आपका प्रोसीजर नोट करता है, सारे वर्कमैन के एंट्री आउटवर्ड ये नोट करता है, वो जानबूझ के स्लो कर दे। जब इनवर्ड और आउटवर्ड स्लो हो जाएगा एंट्री में तो आपके ट्रक्स फंस जाएंगे, राइट। इनवॉइसेस आपके बनने स्लो हो जाएंगे तो आपके ट्रक्स माल लेके निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये अभी आपका एक तरीके का स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि काम रुक जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद सिट इन, यू आर इन अ प्रीमाइसेस, यू आर विथ योर जॉब बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कहलाता है सिट इन। मीन्स अपने जगह पे आप मौजूद हैं फिर भी आप वो काम नहीं करते। फिर आता है टूल डाउन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, फिटर डिपार्टमेंट है, ये अपने टूल्स का यूज नहीं करते। और आता है सिट डाउन, यू आर अवेलेबल इन अ प्रीमाइसेस बट नॉट विथ योर मशीन, नॉट विथ योर दैट फिक्स वर्किंग प्लेस। सिट इन में और सिट डाउन में यही फर्क है। सिट इन में यू आर विथ दैट प्लेस ऑफ वर्क, however sit down में you are available in a premises but not before your place of work। ये है इसका डिफरेंस। ओके, तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्ट्राइक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ स्ट्राइक के बाद अब आता है जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक इज द वेपन which is used by the workmen to raise their voice against anything which is unjust या injust। बहुत सारे वर्ड्स आपके सुन रहा हूं मैं, तो आपको जिस हिसाब की इंग्लिश समझ में आ जाए। अनजस्ट भी सुना है मैंने, तो मैंने कहा अनजस्ट बोल दूं। बट जब भी कोई इनजस्टिस चीजें होती है, एम्प्लॉयर करता है, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कई बार आपको ये निकालना मुश्किल हो जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। बीइंग एज ए एडवोकेट जो हमारा क्लाइंट है वही सही, ठीक है। बट अगर इसको आप एज ए जुडिशरी देखें या एज अ लेमैन देखें या एज ए आप काउंसिलर या आर्बिट्रेटर बैठे हैं तब देखें, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अनलेस एंड अनटिल कंप्लीट एडजुडिकेशन ना हो जाए। ओके, तो ये आपको निकालना। तो जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, ठीक है, ये स्ट्राइक्स क्या होती है, ये अनजस्टिफाइड है, इनजस्टिस या अनजस्टिस नहीं। ओके, जस्टिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, जस्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो जस्टिफाइड स्ट्राइक और अनजस्टिफाइड स्ट्राइक, व्हाइल अ स्ट्राइक मे बी लीगल इन अ सेंस दैट इट इज नॉट इन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अ एक्ट। देखिए, लीगल और इलीगल स्ट्राइक के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। मींस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है और एनी प्रोसीडिंग which is pending or which is under adjudication before any of that 7 authorities, then in that condition declaration of a strike is illegal। उसको आप justify नहीं बोल सकते। रीजन,
your matter, your dispute is already pending before one of the authority. So before passing of any award, how can you proclaim a strike? This comes under unfair legal practice, unfair labor practice. ठीक है, या फिर नेगोशिएशन से आपका काम खत्म हुआ, आपको नहीं जमा, देन टू आपको प्रायर नोटिस देनी है एम्प्लॉयर को कि वी आर डिक्लेयरिंग एन स्ट्राइक, राइट। 14 डेज की प्रायर नोटिस दी जाती है कि हम स्ट्राइक डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल से स्ट्राइक डिक्लेयर, जिससे एम्प्लॉयर को अपना पॉइंट रखने के लिए टाइम मिले। लेकिन आपने ये टाइम पीरियड पूरा नहीं किया और पहले ही डिक्लेयर कर दिया, वो भी इलीगल पे आ जाएगी। तीसरा, आपको एम्प्लॉयर ने दैट लॉकडाउन या ले ऑफ दोनों में से कोई भी एक डिक्लेयर करने के लिए बोला है, आपको नोटिस मिली हुई है, उसके रिप्लाई में आपने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। रीजन, पहली पहल सामने वाला कर चुका है, वो ले ऑफ के लिए या लॉकआउट के लिए आपको ऑलरेडी बोल चुका है। उसके बावजूद इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्राइक देन इट इज नॉट जस्टिफाइड। ओके, तो ये आपका जस्टिफाइड और नॉन जस्टिफाइड जो बाद में आगे आके इसके और नैरोवर सेंस में लीगल और इलीगल में आ जाता है। ओके, while a strike may be legal in a sense that it is not in a contravention of the act, it may not be justified because of the unreasonableness of a demand for which action is launched. Thus, a distinction should be drawn between the unjustified and illegal strike. Unjustified और illegal में यही आपका बेसिक डिफरेंस माना जाता है। आई बात समझ में? रीजन उसका यही है कि आपकी कई बार ये होता है कि इलीगल वो स्ट्राइक नहीं है, रीजन आपका अनजस्टिफाइड है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंपनी ने डिक्लेयर किया ले ऑफ या लॉकआउट, बट आपकी यूनिट के लिए नहीं किया था, दूसरी यूनिट के लिए किया था। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग में स्ट्राइक डिक्लेयर किया तो वो अनजस्टिफाइड, आपके साथ कुछ होने नहीं जा रहा है, और जैसे ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है काम खत्म। अभी हुआ है, कल का एग्जांपल अगर आपने न्यूज देखी हो तो पतंजलि कंपनी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने अपने जो बिस्किट का प्रोडक्शन था वो उन्होंने किसी और को सेल कर दिया है। दैट मीन्स अब जितने वर्कर्स थे वो रिट्रेंचमेंट में आ गए। रिट्रेंचमेंट के नॉर्मल नोटिस निकली, बराबर, बट कुछ शरारती लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि पतंजलि ने पूरी यूनिट ही बेच दी। ऐसे में जो स्ट्राइक डिक्लेयर होने जा रही थी, बाद में जब नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग पे वो आए तो पता चला नो, सिर्फ बिस्किट की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको उन्होंने सेल किया। तो उनके अलावा अगर कोई और डिक्लेयर करे स्ट्राइक तो वो अनजस्टिफाइड हो, क्योंकि आप पे कुछ हुआ नहीं तो बिना वजह आप कोई एक्शन ले नहीं सकते। यू हैव टू शो अ जस्टिफाइड ग्राउंड। तो जस्टिफाइड ग्राउंड होना और इलीगल ग्राउंड होना, इन दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा लेबर लॉ के बाहर जाके, टॉर्च पूछ लिया, लीगल लैंग्वेज पूछ लिया, अब मैं बोलूं कि नहीं मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, तो ये जस्टिफाइड ग्राउंड है। आपके लिए अनजस्टिफाइड हो सकता है, बट इट इज नॉट इलीगल। इलीगल तब होगा जब मैं मेरे सब्जेक्ट का आंसर आपको ना मीन्स। तो इसीलिए जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ अ फैक्ट बिटवीन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। नॉर्मली स्ट्राइक डिक्लेयर की जाती है जब एप्रीहेंशन होता है, राइट। यहाँ पे भी एप्रीहेंशन तब देखा जाएगा अगर कोई भी आपका इलीगल सेंस हो रहा है, देन इट्स ओके। बट अगर अनजस्टिफाइड ग्राउंड पे आप आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका अनजस्टिफाइड है, इट इज नॉट इलीगल एट ऑल। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिए।
आगे काम आएगा और प्रोसीडिंग में काम आएगा, क्योंकि whenever the court declare that it is the strike under unjustified reason, in that situation employer कोई भी एक्शन आप पे नहीं ले सकता. However, if the court declare by passing an award that strike is illegal, ऐसे सेंस में आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेगा एम्प्लॉयर. तो ये इलीगल और अनजस्टिफाइड पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा. ओके, तो सेसेशन ऑफ वर्क भी करवाना है अगर आपको कंसर्न इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसको उस तरह से तैयार करवाएं. ओके, while all illegal strike may be described as unjustified one, वो तो कॉमन सी बात है, इलीगल है तो अनजस्टिफाइड होगी. However, all unjustified strike is not illegal. ये बेसिक डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया. इलीगल स्ट्राइक है तो अनजस्टिफाइड तो होगी. इलीगल चीज को आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, राइट? कि आपके लेक्चर के दौरान आप कुछ और कांड करें तो वो इलीगल है, उसका जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते, भले ही आप कुछ भी कह लें, राइट? एग्जाम्पल भी ऑल नोस. लेकिन अनजस्टिफिकेशन कई बार हो जाता है, जैसे किसी का माइक खुला है तो वो जानबूझ के नहीं करता, राइट? किसी का अचानक किसी ने यहाँ वहां बीच में क्वेरी टोक दी तो उसने जानबूझ के नहीं किया, तो वो इलीगल नहीं है, वो अनजस्टिफाइड. आई बात समझ में? कोई स्टूडेंट अगर बीच में टोक देता है या किसी और प्रोफेसर की बात करता है तो वो अनजस्टिफाइड है, इलीगल नहीं है. लेकिन आपकी तरफ से की जाने वाली हरकतें ये इलीगल कहला जाएंगी अगर डिस्ट्रैक्शन होता है, राइट? वो जस्टिफिकेशन ग्राउंड पे नहीं. अब आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए कि इलीगल क्या है और अनजस्टिफाइड क्या है. गुड, ठीक है. उसके बाद आपका आता है that without reference to the justice of a demand, it cannot be said that all legal strike are justified one. कई बार ऐसा होता है कि लीगल स्ट्राइक तो है, स्ट्राइक करने के लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए थे वो सारे फुलफिल भी किए हैं, बट स्ट्राइक डिक्लेयर होने का मतलब वो लीगल हो जाए. लेट द कोर्ट डिसाइड, राइट? तो जैसे all illegal strike are unjustified, however all legal strike are not justified. Reason, after the adjudication अगर कोर्ट डिक्लेयर करता है then it's okay. तो act is important है for legal work, line of action is important for legal work. Okay, so it cannot be said that all legal strike are justified one insofar as our demands may not be reasonable. The act, however, concerns itself only with whether a strike is legal or illegal. कई बार आपकी डिमांड जो होती है वो लीगल वन नहीं होती, ठीक है? अब लीगल डिमांड नहीं होगी लेकिन आपने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी तो वो स्ट्राइक कहीं ना कहीं आपकी अनजस्टिफाइड भी है और इलीगल भी है. लेकिन स्ट्राइक आपकी जस्टिफाइड है, लीगल है, लेकिन कई बार आपकी डिमांड ऐसी होती है जो फुलफिल करने लायक नहीं है. ऐसे में आपकी डिमांड की वजह से आपने जो स्ट्राइक डिक्लेयर की, आपकी डिमांड अनजस्टिफाइड है, तो आप रीजन जस्टिफाइड नहीं दे सकते, दो यू फॉलोड ऑल द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट. व्हाट माय पॉइंट? इसी वजह से स्ट्राइक को भी कोर्ट सेट असाइड कर देता है अगर वो जस्टिफिकेशन ना मिले तो. आपके हर एक्ट का जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने ये क्यों किया. कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, राइट? चलिए, तो दिस इज द स्ट्राइक अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. नाउ कम टू द पॉइंट लॉकआउट. अभी तक तो हमने देखा एम्प्लॉयर की तरफ से, ओके? अब हम आते हैं एम्प्लॉय की तरफ से.
एम्प्लॉय ने ये स्ट्राइक डिक्लेयर की, वर्कमैन ने, अब वो स्ट्राइक जस्टिफाइड है अनजस्टिफाइड है, इसके हमने सारे पॉइंट देखे। अब हम आते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करता है? ओके, एम्प्लॉयर किस हिसाब से आगे बढ़ेगा, उसके पास कौन से वेपन्स है? तो एम्प्लॉयर के पास वेपन माना जाता है लॉकआउट का। लॉकआउट मीन्स a closing of a place of employment or suspension of a work or refusal by employer to continue to employ any number of person employed by him। ये सारी चीजें आपकी लॉकआउट में आती है। या तो प्लेस ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट को बंद कर दे, या काम देने से मना कर दे, सस्पेंशन ऑफ वर्क कर दे विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, या फिर जो आप काम कर रहे हैं कुछ मजदूरों को वो मना कर दे। ठीक है, कुछ मजदूरों को वो मना कर दे कि नहीं मैं आपको काम नहीं दूंगा। कई बार होता है इंडस्ट्री में बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, जिस वजह से वहां पे भी एक ग्रुपिज्म चलता है, एम्प्लॉयर के कुछ फेवरेट बन जाते हैं। अब ऐसे में वो ग्रुप जो चाहता है कि भैया हमारे पास मेजॉरिटी हो, तो वो दूसरी जो वर्किंग आपके लेबर यूनियन है उनकी कटिंग शुरू कर देता है अननेसेसरली वे में, राइट। इस ग्रुपिज्म का कारण ही यही होता है। ग्रुपिज्म का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप खुद में कमजोर हैं, अदरवाइज आपको किसी ग्रुप की जरूरत नहीं होती। ग्रुप आप तभी बनाते हैं जब आप खुद में कमजोर हैं। अगर आप खुद में कमजोर नहीं है तो नो नीड। और ऐसे कंडीशन में एज अ लेबर तो बात ही अलग है, आपके पर्सनल वे में भी नो वन विल रेज अ सिंगल फिंगर ऑन यू। वही चीज यहाँ होती है, एम्प्लॉयर को ये बात खटकती है। तो व्हाई ही इज इन अ ग्रुप, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? इफ आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विस, I am giving him a handsome payment, I am providing him a proper condition, then why he is joined in that group? तो ये जब एम्प्लॉयर की नजर में आता है कि दैट यू आर अ पार्ट ऑफ सम ग्रुप, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरटेनमेंट बंद हो जाता है, ये याद रखिएगा। बट इट डजंट मीन कि आप अपने वर्कर्स को बोलें कि नहीं आप अपनी यूनियन में इन्वॉल्व मत हो सकते हैं, बट जस्टिफाइड रीजन के हिसाब से ही कंटिन्यू करें, अदरवाइज नहीं। ग्रुप बनाना गलत बात नहीं है, बट जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। अगर ग्रुप ये बनता है कि हम कितने अच्छे से अपनी वर्किंग स्किल को बाहर ला सकते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, अदरवाइज नहीं। इट इज वेल सेटल्ड एज पॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट in an Express newspaper versus their workman, 1962, volume 2, Legal Law Journal, page number 227, Supreme Court, that a lockout involves merely the closing of a place of business and not the business itself। याद रखिए, लॉकआउट का मतलब पूरा बिजनेस बंद होना नहीं होता। लॉकआउट का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ दैट यूनिट ओनली। ओके, तो एक आदमी के काम ना करने से वो यूनिट बंद नहीं होती, ठीक है। तो इसको आपको अपने, हाँ अब वो अकेला इंसान कितना पावरफुल है वो बात अलग है। ओके, तो यहाँ पे भी वही हालत है, लॉकआउट मीन्स इट्स अ क्लोजिंग ऑफ दैट यूनिट, नॉट होल बिजनेस। उसका बिजनेस वैसे कंटिन्यू चल रहा है, इस यूनिट को उसने बंद किया, तो दैट इज नोन एज lockout। This distinction is also the test of a difference between the lockout and closure। Closure means completely shut down of all his businesses, all his units। However, lockout means that particular place or unit or more than 2-3 units are closed।
where employer are not willing to provide you a job. That's because of your behavior of a workman. Yes, definitely लॉकआउट सिर्फ वर्कमैन के बिहेवियर पे ही डिपेंड होता है. अदरवाइज कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि उसकी, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो सबसे ज्यादा फायदा है इन चीजों पर. तो एम्प्लॉयर कभी भी अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहेगा. अगर बंद करता है, भले ही वो रीजन जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, बट कहीं ना कहीं ये मजदूरों की वजह से ही उसको ये एक्शन लेना पड़ता है. व्हाट माय पॉइंट? इसको आप कहते हैं लॉकआउट, जिसको दिल्ली दैट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस देयर वर्कमैन. दिस इज नोन एज लॉकआउट. अब डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉकआउट एंड क्लोजर क्या है? While a closure involves the final close down of a very business engaged by the employer, and lockout is the close of place of the business. Lockout declare करने से इंडस्ट्री बंद नहीं होती. However, closure declare करने से इंडस्ट्री बंद हो जाती है. आई बात समझ में? जैसे पतंजलि ने अपना बिस्किट यूनिट क्लोज कर दिया, तो वो लॉकआउट नहीं है, वो क्लोजर है. इसीलिए मैंने रिट्रेंचमेंट का वर्ड यूज किया, राइट? कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है. लॉकआउट डिक्लेयर नहीं हो सकता, ले ऑफ डिक्लेयर नहीं हो सकता, राइट? इसीलिए वो रिट्रेंचमेंट है, जहां पे रिक्वेस्ट करके सारे मजदूरों को काम करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि कंपनी इज गोइंग टू अ क्लोजर. लॉकआउट और क्लोजर में ये फर्क है. क्लोजर मीन्स परमानेंट स्टॉपेज ऑफ अ वर्क, कुछ नहीं होगा अब, ठीक है. और लॉकआउट मतलब कुछ दिन के लिए डाउन है या वो यूनिट डाउन है, बाकी काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है. ओके. नो टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट. Just as in a case of a strike, the declaration of lockout does not ipso facto result in a termination of a contract of employment. जैसे स्ट्राइक डिक्लेयर होती है तो वो रेजिग्नेशन ऑफ वर्कमैन नहीं माना जाता, राइट? ऐसे ही जब लॉकआउट डिक्लेयर होता है तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं माना जाता, अनलेस एंड अनटिल वो जस्टिफाइड ग्राउंड में ना हो जाए और कोर्ट डिक्लेयर ना करे. स्ट्राइक आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपने रिजाइन नहीं किया अपनी यूनिट से. आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, उसको आप सॉल्व करके लेना चाहते हैं. आपने वो कंपनी छोड़ी नहीं है. ऐसे ही लॉकआउट में भी है कि लॉकआउट में मैंने आपको टर्मिनेट नहीं किया, मैंने रिफ्यूज कर दिया है काम देने से, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्शन. तो जब भी जस्टिफिकेशन की बात आती है तो स्ट्राइक में वर्कमैन की तरफ से यही बोला जाता है कि इट इज द रिएक्शन, इट इज नॉट द एक्शन, इट इज द रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयर. हाउएवर लॉकआउट में यही डिफेंस दिया जाता है, इट इज द रिएक्शन ऑन अ अनजस्टिफाइड एक्शन ऑफ वर्कमैन. ओके. अब आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनमें अगर आप स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अगर इन्होंने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी तो पूरी तरह से एक सामान्य आपकी सेवा बंद हो जाएगी. गैस है, इन्होंने अगर बंद कर दी, डीजल पेट्रोल इन्होंने बंद कर दी, ये कहीं ना कहीं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है. पतंजलि में स्ट्राइक हो गई तो आप गोकुल का दूध पी लेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. बट अगर होल मिल्क इंडस्ट्री मिलके स्ट्राइक कर दे तब आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बन जाता है. आप पार्ट हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के और उसको पब्लिक एट लार्ज में इफेक्ट नहीं पड़ता तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस. पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो डायरेक्टली आपको इफेक्ट करती है. यहाँ पे भी वही है, नोटिस देनी है 14 डेज, ठीक है. अगर आपको कोई भी चीज डिक्लेयर करनी,
ठीक है, यहाँ पे without giving the employer a notice of a strike as hereinafter provided within 6 weeks before striking, यहाँ पर 6 वीक का टाइम दिया होता है, ठीक है, यहाँ पर 6 वीक इट डजंट मीन कि 42 डेज, नो, 6 वीक। इसमें आप ऊपर नीचे कर लेते हैं कई बार, ठीक है, कि आप सैटरडे को डिक्लेयर करेंगे तो वो वीक आपका कवर होता है। नोटिस इशू करने के पहले ये चीजें दिमाग में रख लीजिए, ओके। तो जब आप ये चीज चालू करते हैं तो आप उसको 6 वीक का प्रायर नोटिस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को स्ट्राइक डिक्लेयर करने के पहले, और 14 दिन के पहले पहले आप स्ट्राइक डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। आपने नोटिस दी 6 वीक पहले, लेकिन नोटिस इशू कर दी और कल ही आपने स्ट्राइक डिक्लेयर की, तो वो स्ट्राइक प्रोहिबिटेड है और एक अमाउंट टू इलीगल स्ट्राइक। कई बार होता है कि भाई 6 वीक का नोटिस दिया है मैंने, बट सामने से मुझे लग रहा है कि कोई एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, एम्प्लॉयर है तो पावरफुल होगा जनरल टर्म में, ऐसे में फिर भी आपको 14 दिन तो रुकना ही है, जो जनरल प्रोसीजर मैंने आपको स्ट्राइक के लिए भी बताया। Before expiry of a date of a strike specified in any such notice as aforesaid, अगर नोटिस में आपने लिख दिया कि इस डेट से हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो उसके पहले पहले आप स्ट्राइक डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि 31 मई से मैं स्ट्राइक करने जा रहा हूं, अब मैं 31 मई के पहले स्ट्राइक नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राइटिंग में दिया है। आपको जब भी कोई असाइनमेंट दिया जाता है, आपको डेट दी जाती है, तो उस डेट के पहले तो हम आपसे असाइनमेंट नहीं मांग सकते ना, अगर मांगे तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, जो नॉर्मल आपके स्ट्राइक के लिए है, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज पेंडेंसी में है आप नहीं कर सकते। सेम कंडीशन अप्लाइड इन लॉकआउट्स, सेम 6 वीक का टाइम देना है, 6 वीक के टाइम के साथ साथ वही 14 डेज, और अगर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम है वो, ठीक है, या फिर आपका सीधे सीधे 7 डेज, अगर आपकी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो कंक्लूड करने के बाद 7 दिन रुकना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है स्ट्राइक या लॉकआउट। अब आते हैं व्हाट इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सेक्शन 2 सबसेक्शन N describe the public utility services as follows. A public utility services means any railway, transport for carriage of passengers or goods, any section of industrial establishment on a working of which the safety of the establishment of workmen employed therein depend, any postal, telegraph, telephone, any industry which supplies power like air, water to the public, any system of a public conservatory or sanitization। तो ये सारे आपके पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैं जिनका क्लोज होना एक बड़े उसमें इफेक्ट डालता है, ओके। डॉकयार्ड की सर्विस मानी जाती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो दीज ऑल आर द सर्विसेज व्हिच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ओके। चलिए, the period so specified cannot in the first instant exceed 6 months, but may by like a notification be extended from time to time. Any proceeding that any period exceeding 6 months at any one time if the opinion of the appropriate government, public emergency, public interest, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 6 महीने के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन डिक्लेयर होती है देन इट्स ओके, क्योंकि डिपेंड करता है कि वहां पर क्या कंडीशन इम्पोज हो रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। आप डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज को रिजिड वे में, क्योंकि एम्प्लॉयर की भी अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, एम्प्लॉय की भी अनअवेलेबिलिटी हो सकती है,
इन दोनों सिचुएशन में आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है. ओके. When the notification of lockout or strike is not necessary, यहाँ पे भी एक आपको दिया हुआ है कि जैसे अभी हमने देखा कि भाई नोटिफिकेशन देना जरूरी है, अदरवाइज आपकी स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल मानी जाती है. बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ मैटर रिलेटेड टू द वर्कमैन. एम्प्लॉयर के यहाँ पे अगर कुछ दिन का वर्क बंद रहे तो उसको नुकसान नहीं होगा, बट जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए नुकसान होता है. जैसे अभी ये लॉकडाउन की बात करें, हाई क्लास के लोग बिल्कुल सेफ बैठे हुए, ठीक है. मिडिल क्लास के अपनी सेविंग पे जी रहे हैं पिछले 1.5 साल से, बीच में थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ. बट अब आप एक कंसीडर करिए, जो सब्जी वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, वो तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, राइट. तो उनके लिए अब यहाँ पे एक मुसीबत खड़ी, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलैक्सेशन देना पड़ता है. ओके. यस, इट इज द ट्रू कि वो भी गलत फायदा उठा रहे हैं. बहुत सारे ऑटो वालों को मैंने देखा है जो शेयरिंग पे ऑटो चला रहे हैं विदाउट पास. दे आर द कैरियर ऑफ कोरोना. बट कहीं ना कहीं आपको उससे अपनी नजरें हटानी पड़ती, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर देयर डेली वेजेस. उनके ब्रेड एंड बटर का इंतजाम डेली वेजेस पे होता है, सेविंग से नहीं, राइट. हाई क्लास पीपल के लिए ये दोनों लॉकडाउन एक अच्छी छुट्टी बनी. बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें हो, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, मजे मारे. मिडिल क्लास भी सोचता है चलो यार थोड़ी तो छुट्टी मिली. बट जो ये डाउन क्लास लोग थे, इनके लिए ये नुकसान किया. इसी वजह से यहाँ पे भी वही है, स्ट्राइक या लॉकडाउन या लॉकआउट जब डिक्लेयर होता है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हो. अब वो नोटिफिकेशन पीरियड देना, रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं इन वर्कर्स को ध्यान में रखा गया है. इसीलिए ये पॉइंट एडेड है दैट सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 that a notification of a lockdown or strike under this section is not necessary when there is already existence a strike. ऑलरेडी अगर स्ट्राइक है और दूसरी यूनिट उसमें शामिल हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन देने की. कई बार ये होता है ना कि एक आदमी स्ट्राइक करता है और उसके बाद लोग जुड़ते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह, जो उन्होंने प्रिजन के अंदर हंगर स्ट्राइक की थी, शुरुआत 2 लोगों ने की, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. लेकिन बाद में 130 और पूरी की पूरी लाहौर जेल और फिर लगभग 25% ऑफ इंडिया, ये उसमें एड ऑन होते चले गए, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बार बार नोटिस देनी पड़ रही. एक बार स्ट्राइक डिक्लेयर है, लोग जुड़ते चले गए, ठीक है. तो ऐसे ही अगर लॉकआउट या स्ट्राइक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और उसमें और यूनिट जुड़ रही है, तो ऐसे में ये आपको अलग से नोटिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है. The employer should, however, send intimation of such lockout on a day which is declared to the authorized authorities specified by the appropriate government, either generally or for a particular area or for a particular class of public utility service. तो ये सारी चीजों को अगर आप अंडर कवर लेते हैं तो ऐसे में आपको प्रायर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. So the general prohibition of a strike and lockout, section 23. No workman who is employed in an industrial establishment can go on a strike in a breach of contract, and no employer on any such workman can declare a lockout. यहाँ पे दोनों के लिए प्रोविजन सेम है, दोनों के लिए टाइम लिमिट सेम है. दैट क्या है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट. अगर किसी बोर्ड के सामने, कंसिलिएशन बोर्ड है, इनके सामने कोई प्रोसीडिंग आपकी पेंडिंग है, दोनों के बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग चल रही है, तो पेंडेंसी में आप ये स्ट्राइक या लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकते. आफ्टर द कंक्लूजन 7 डेज के अंदर आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि अगर आपकी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी बोर्ड के सामने, आप लोगों के बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ, then too you have to wait for 7 days after the conclusion of that proceeding
during the pendency of a conciliation proceeding before the labor court, tribunal or national tribunal, and 2 months after the conclusion of such proceeding. 2 month हमने क्यों लिया था? क्योंकि publication of award है, plus 30 days for the appeal period. जब भी ये proceeding conclude होती है, वो अवार्ड को पब्लिकेशन के लिए भेजा जाता है और 30 डेज का आपको अपील पीरियड भी होता है. इस वजह से 2 महीने तक उस प्रोसीडिंग के कंक्लूड होने के बाद भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकते. सेम थिंग अप्लाई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सेम चीज उसके लिए भी अप्लाई होगी. ठीक है. और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनी सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन. सपोज कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने कोई अवार्ड पास किया, अब उस अवार्ड को आप प्रोसेस पे ला रहे हैं और उसमें अगर आपकी ये प्रोसीडिंग चल रही है, एग्जीक्यूट हो रहा है वो अवार्ड, और आप जो है उसको डिक्लेयर करते हैं उस बीच में लॉकआउट या स्ट्राइक, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है. आई बात समझ में? और ये इलीगल डिक्लेरेशन होगा आपका, स्ट्राइक या लॉकडाउन. ओके. तो ऐसे में आपको स्ट्राइक डिक्लेयर करना ये प्रोहिबिटेड है, लॉकआउट डिक्लेयर करना ये प्रोहिबिटेड. दीज आर द मेन पॉइंट अंडर सेक्शन 23. ओके. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उसमें, जस्ट अ मोमेंट. इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट. illegal strike and lockout. Section 24, subsection 1 provides the strike or lockout is illegal. That section 24, subsection 1 provides that a strike or lockout is illegal if it is commenced or declared in a contravention of section 22 और 23. जो अभी हमने देखा कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के सामने कुछ पेंडिंग है, या फिर अगर आपका एडजुडिकेशन चल रहा है वो पेंडिंग है, या डिक्लेरेशन होने के बाद भी 7 दिन से लेकर 2 महीने तक आप ये स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं कर सकते. अगर आपने स्ट्राइक डिक्लेयर की तो ये स्ट्राइक या लॉकआउट आपका इलीगल माना जाता है. तो सिंपल वर्ड में लिखिएगा, एनी डिक्लेरेशन ऑफ और एनी commencement of a strike or lockout is illegal when it is in a contravention in a section of 22 or 23, या फिर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 जहां पे आपको ऑर्डर पास हुए थे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आपको पास हुए हैं उसके अगेंस्ट में अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो भी एक मैटर अंडर एडजुडिकेशन है. और अगर वो एडजुडिकेशन में पड़ा हुआ है तो ऐसी किन्हीं चीजों को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते. व्हाट माय पॉइंट? तो ये आपका इलीगल हो जाता है कोई भी स्ट्राइक. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं ऑन एनालिसिस ऑफ अ प्रोविजन. चलिए, ऑन एनालिसिस of a provision of section 24, it will be seen that the case of a strike or lockout in public utility service, provisions of section 22 and 23 have to be followed by the workman or the employer respectively. In non-public utility service, the worker or employer, before declaring a strike, the provision of section 23. देखिए, याद रखिएगा, सेक्शन 22 और 23 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए है, लेकिन सेक्शन 23 सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए. प्राइवेट सेक्टर में सेक्शन 22 को अप्लाई करना जरूरी नहीं है. मार्क दिस वर्ड. ओके. प्राइवेट का यूटिलिटी सर्विस में आपको कहीं पर भी सेक्शन 22 को अप्लाई करना नेसेसरी नहीं है. वहां पे सिर्फ सेक्शन 23 ही लगेगा. लेकिन
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में सेक्शन 22 और सेक्शन 23 जरूर लगेगा। उसके बाद हम आते हैं कि ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। When an illegal strike is already in existence, a lockout declared in a consequences thereof does not make lockout illegal. Illegal strike अगर चल रही है उसके अगेंस्ट में अगर लॉकआउट लगा दिया एम्प्लॉयर ने तो वो लॉकआउट इलीगल नहीं होगा। दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग होंगे, दोनों के रीजन जस्टिफिकेशन के लिए अलग अलग होंगे, याद रखिएगा। तो अगर एक का इलीगल है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे ने जो एक्शन लिया वो भी इलीगल हो जाए। ओके, सिमिलरली अ स्ट्राइक डिक्लेयर इन अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल लॉकआउट which is already in operation will not render a strike illegal. इलीगल लॉकआउट्स के अगेंस्ट में अगर स्ट्राइक डिक्लेयर की जाती है तो आपकी स्ट्राइक लीगल कही जा सकती है, इलीगल डिक्लेयर नहीं की जा सकती। सेम चीज इलीगल स्ट्राइक के अगेंस्ट में अगर लॉकआउट डिक्लेयर किया जाता है तो वो लॉकआउट इलीगल नहीं होता, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। इन वन केस द वर्कमैन वेंट on an illegal strike which was subsequently called off, means strike declare किया लेकिन बाद में उसको वापस बुला लिया। However, the workmen continued their description within the factory premises, मतलब strike declare नहीं किया लेकिन वो जो मैंने अभी आपको 6 पॉइंट बताए थे, स्लो डाउन कर दिया, सिट डाउन कर दिया, सिट इन है, पेन डाउन है, टूल डाउन है, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। As a result of which management declare a lockout. जब मैनेजमेंट ने देखा कि आप कलरेबल एक्सरसाइज में आप ये चीजें कर रहे हैं तो उसने लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया कि व्हाई शुड आई पे फॉर दिस अननेसेसरी थिंग्स, राइट। आप मेरा ही विरोध कर रहे हैं, मेरे ही प्रीमाइसेस में मेरी ही पेमेंट लेके, तो बेटर है कि आई डिक्लेयर अ लॉकआउट। ओके, इट वाज हेल्ड दैट such lockout could not be regarded as illegal lockout even if the provision of section 22 of act were not compelled with reason already illegal strike declared थी और वर्कमैन यहाँ पर इस केस में उनको कोई भी वेजेस नहीं मिला। ये HMT लिमिटेड वर्सेस HMT ऑफिस एम्प्लॉइज एसोसिएशन 1997 का केस है। ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज नंबर 585। तो दिस इज द प्रोहिबिशन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू द इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। आजकल बड़ा कॉमन ट्रेंड में है, आपने भी देखा होगा, जहां पे भी आंदोलन होता है मुफ्त के लोग पहुंच जाते हैं खाना खिलाने, सेवा करने, राइट। ये बड़ा आजकल कॉमन ट्रेंड है। ऐसे रीजन इसके पीछे क्या होता है, ये दिलदार लोग नहीं होते हैं, इनका मोटिव होता है जिसके खिलाफ ये चल रहा है ये उनके विरोधी होते हैं। अदरवाइज इतने दिलदार लोग हों तो अभी फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको कहीं नहीं दिखेगा कोई किसी को खाना खिलाते। अभी कुछ दिन पहले तक हमें सुनाई दे रहा था कि 1 साल का हमारे पास भंडार है, हम आंदोलनकारियों को खिला सकते हैं, पर वो 1 साल का भंडार जो लॉकडाउन में बेचारे पैदल मजदूर जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, राइट। तो इसका मोटिव यही होता है और यही चीज स्ट्राइक में भी है कि जब स्ट्राइक चल रही है तो स्ट्राइक ज्यादा दिन नहीं चलती अगर उन मजदूरों को पेमेंट ना मिले, राइट, क्योंकि वो भी एक सेटलमेंट चाहते हैं। लेकिन अगर आउटसोर्सेस से उनको फंडिंग मिल रही है तो वो स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं। और ये आउटसोर्सेस कौन अवेलेबल कराता है, उनकी राइवलरीज उस एम्प्लॉयर की कि चलने दो ये डिस्टरबेंस, जितना चलेगा इनका उतना मार्केट डाउन होगा, राइट। इसीलिए ये प्रोहिबिशन लगाया गया। इलीगल एड जो आप देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, इसमें पेनल्टी लगा दी गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया है। एनजीओ पे फंड मिलने पर उसने रोक लगा दी कि डिक्लेयर करो कहां से, अपना दान के नाम पे सारी चीजें होती थी, राइट। वही चीज यहाँ पर है। Section 25 relates to the prohibition of financial aid to the illegal strike and illegal lockout and provide that no person shall knowingly expend or apply any money
इन डायरेक्ट फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। यहाँ पे और है, ऑफ नहीं। ओके, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट मींस आपकी वो स्ट्राइक को कंटिन्यूएशन पे ना जाए, आप कोई भी इलीगल तरीके से उन दो के डिस्प्यूट का फायदा आप ना उठाए। ठीक है, इसकी वजह से ये रोक लगाई गई। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि दो के बीच में चल रहा है, तीसरा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना शुरू है, तो बेटर है कि भैया आप अपनी हद में रहें। उसको रोकने के लिए सेक्शन 25 बनाया गया। अननेसेसरली ना कूदे, जिनका मैटर है वो देख लेंगे, तुमको कौन सी जरूरत पड़ी है फाइनेंशियल सपोर्ट की, राइट। लेकिन राइवलरीज करती थी, इसके लिए ये बनाया गया। और अगर ये फंडिंग डिक्लेयर हो जाती है तो आपके स्ट्राइक या लॉकआउट को कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर देगा। याद रखिएगा, अगर एक्सटर्नल फंडिंग उसमें मिलती है तो, अब तो खैर आजकल बड़े उसमें चलता है तो ईडी इन्वॉल्व हो जाती है। ऑलरेडी इन सारी चीजों के पीछे इन्वॉल्वमेंट रहता ही है इन एजेंसियों का, जो कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन करती है कि कहां से आ रहा है, राइट। While deciding whether a strike or lockout is illegal, the provision of section 22, 23 and 24 have to be taken into account. Once it is determined that the strike or lockout is illegal with reference to the above provision, the question is to be decided is whether the concerned person had in fact expended or applied any money in a direct furtherance of or support of illegal strike or lockout. It's a matter of investigation. एजेंसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसीलिए रखी गई है, कंसिलिएशन ऑफिसर इसीलिए रखा गया है कि ये जो सारी चीजें चल रही है प्रेमाइसेस के बारे में कोर्ट खुद नहीं आएगा देखने, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भेजी जाती है, जहां पे वो आउटसोर्सिंग का पता लगाते हैं कि अगर आप एक मामूली से किसान हैं तो आपको रोजाना बादाम का हलवा कहाँ से मिल रहा है, आप एसी के टेंट में कैसे सो रहे हैं, ये एक मैटर ऑफ क्वेश्चन होता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनको देखता है कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है, और अगर इतना ही पैसा है आपके पास तो स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, एक दूसरे का तालमेल बना के आगे बढ़ जाइए। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आप वहां बैठे हैं कि मैं दबा कुचला मजदूर हूं, ठीक है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, एम्प्लॉयर ने मुझसे ये चीज डिक्लेयर करके लॉकआउट डिक्लेयर कर दिए, मेरी पूरी बैंड बजा दी, राइट। लेकिन उसी जगह जब वो स्ट्राइक की प्लेस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जाती है तो देखते हैं बढ़िया बिरयानी खाई जा रही है, बढ़िया वहां पे गद्दे बिछे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है, एसी चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये आउटसोर्सेस पे क्वेश्चन उठता है कि अगर ये मजदूर इतना परेशान है तो ये कहां से आया, तो ये जानना इसीलिए जरूरी होता है। इट मीन्स या तो वो खुद कर रहा है तो वो कल्प्रिट है, या फिर बाहर से आ रहा है, तो अब उसका इंटरेस्ट जानना जरूरी है। भाई तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो इस स्ट्राइक में, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, राइट। इस वजह से इसको प्रोहिबिशन लाया गया, जो कलरेबल एक्सरसाइज होती थी अलग एम्प्लॉय। और इलीगल स्ट्राइक और लॉकडाउन के लिए पेनल्टी लगाई गई। अगर इलीगल स्ट्राइक है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ, फाइन अप टू 50 रुपीज और बोथ। और इलीगल लॉकआउट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, फाइन 1000 और बोथ। रीजन इसके पीछे यही रखा गया क्योंकि थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर एम्प्लॉयर एक मजबूत कंडीशन में आता है, इनके लिए फाइन थोड़ा ज्यादा रखा गया। अगर कोई इंस्टिगेट करता है इलीगल स्ट्राइक या लॉकडाउन को, लॉकआउट को, तो उसके लिए 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1000 रुपीज रखा गया। इस ढंग से आपका ये स्ट्राइक और लॉकआउट ये आपका डिक्लेयर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। ओके, आज के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं।